Present discussion for class 12 accountancy. We were passing by the chapter partnership, second chapter, change in profit sharing ratio. There are so many small ideas, concepts are here which will be needed for the next admission chapter, retirement chapter, death chapter. So very essential these things. We have already discussed in this sub chapter in change in profit sharing ratio chapter. That is how to calculate the gaining share, sacrificing share of the partner, how to calculate the valuation of goodwill in different methods, how to make the accounting treatment of the goodwill. Now we are coming that accounting treatment of general reserve, PL account credit balance, advertisement suspense account and workmen compensation reserve. Very important. Suppose this is a question. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. This is the old ratio. They like to change their ratio into equal, that is 1:1. So this was the old ratio. This is the new ratio. And general reserve 30,000 given to you in the question. Workmen compensation reserve given 50, suppose 24,000. PL account credit balance given 25,000, advertisement suspense account given 12,000. You are asked here to pass the journal entries. Now general reserve, workmen compensation reserve and PL account credit balance, all these are the liabilities. So liabilities already it was credited in the trial balance. So these are already credited. Now these are the profit part. PL account credit balance is the profit which is not distributed among the partners. General reserve is the part of the profit which is kept, not distributed among the partners, and workmen compensation reserve which is kept from the profit but for the workers compensation. अगर फ्यूचर में वर्कर्स को कोई हानि पहुंच रहा है ड्यूटी टाइम पे, वो लोग को कॉम्पेंसेशन करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, उसके लिए प्रॉफिट से अलग करके रखा हुआ है 24,000. तो ये सब प्रॉफिट से ही अलग करके रखा हुआ है. ये तीन आइटम. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये डिफरेंट चीज है, ये बाद में हम समझा रहे हैं आपको. तो ये तीनों आइटम जो प्रॉफिट से अलग करके रखा हुआ है, तो इसमें किसका हक होता है? द ओनर्स आर हैविंग द राइट टू गेट दिस मनी. तो ओनर मीन्स ए एंड बी पार्टनर्स. तो ये तो प्रॉफिट से अलग करके रखा हुआ है. तो प्रीवियस रेशियो क्या था? 3:2. अभी वो लोग रेशियो चेंज करना चाह रहे 1:1. तो ये प्रॉफिट से अलग करके रखा हुआ था, तो ये तो प्रीवियस रेशियो में इफेक्टिव होगा. तो ये तीनों का अमाउंट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ओके, सो व्हाट एवर जर्नल विल बी पास्ड, one journal you have to pass, that general reserve account debit 30,000, workmen compensation reserve account debit 24,000, PL account debit 25,000. और ये टोटल जो होगा दैट इज 30,000 प्लस 24,000, 54,000, 54,000 plus 25,000, that is 79,000.
this 79,000 rupees will be distributed among A and B in old ratio, because from today the new ratio will be applied, but these are the profit part for the previous years. So 79,000 into 3/5 A को मिलेगा और 79,000 into 2/5 B को मिलेगा। तो 5 से काटिए इसको, 5 5 1 5 29, 5 5 25, 4 5 8 40 00। तो इसको भी काट के यही आएगा 15,800। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 0, 3 8 24 कैरी 2, 3 15 45 और 2 47, और 2 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 8 दूना 16, 15 दूना 30, 1 31, दैट इज 47,400 A को मिलेगा। टू A's कैपिटल अकाउंट 47,400 and to B's capital account 31,600। पार्टनर को मिलने से पार्टनर क्रेडिट होता है। तो जस्ट यहाँ पर इस केस में न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, तो फिर न्यू रेशियो क्यों दिया? आई एम कमिंग आफ्टर 2 minutes, बट इफ क्वेश्चन विल बी गिवन लाइक दिस कि जर्नल करो, आपको ये जर्नल करना है। आपको नरेशन में क्या लिखना है? जनरल रिजर्व, वर्कप्लेस कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए आपको एक सेपरेट जर्नल करना पड़ेगा। क्यों? ये जर्नल नंबर 2 एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बारे में हम पहले भी बोले थे, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। फिक्टिशियस एसेट्स का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एसेट है, तो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आ चुका होगा। एसेट्स आर द डेबिट बैलेंस। तो ये जब डेबिट बैलेंस है, इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सो जर्नल में कैसे आएगा? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 12,000 है, ये क्रेडिट साइड में गया 12,000। ये 12,000 अभी ए और बी के बीच में, एक्चुअली ए और बी बियर करेगा, शेयर नहीं करेगा। शेयर मतलब पार्टनर को जब मिलता है क्रेडिट हो रहा है, और बियर हो रहा है कब? जब पार्टनर डेबिट हो रहा है, उसको बियर करना है, लेकिन होगा ओल्ड रेशियो में। तो 12,000 को 3/5 दैट इज 5 2 10, 5 4 20, 00, 7200। तो 7200 ए का घर में होगा, और बाकी 7 5 12, तो 4,800 बी का घर में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन तो फिर देख ले कि ओल्ड रेशियो का, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं रहा। न्यू रेशियो का भी काम हो सकता है। कब? आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है, सपोज अभी क्वेश्चन इस ढंग से आपको दे रहे हैं कि जनरल रिजर्व 30,000, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व 24,000, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 24,000, और आपको बोल दिया सो द एडजस्टेड एंट्री। एडजस्टेड एंट्री वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपको एडजस्टेड एंट्री बोल देगा
तब आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के माध्यम से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे, सैक्रिफाइसिंग और गेन। इसके लिए कैलकुलेशन सिखाए थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव में आ रहे तो सैक्रिफाइस और अगर नेगेटिव में आ रहे तो गेन। ए का क्या कंडीशन है देखते हैं। ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर है 1/2। एलसीएम 10, 6 - 5, पॉजिटिव 1/10, दैट इज ए सैक्रिफाइस किया। और बी का 2/5 - 1/2, दैट इज 10, 4 - 5, दैट इज -1/10। तो -1/10 लिख के हम गेन नहीं लिखेंगे, माइनस साइन को उठा देना पड़ेगा आपको, 1/10 लिख के गेन लिखना पड़ेगा। दैट इज आई एम सीइंग हियर दैट ए 1/10 को सैक्रिफाइस किया और बी 1/10 गेन किया। आगे आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व का अमाउंट, वर्कप्लेस कॉम्पेंसेशन रिजर्व का अमाउंट, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट, तीनों क्रेडिट बैलेंस था, तीनों का अमाउंट को जुड़ना पड़ेगा। 79,000 हो रहे, जो गेन किया उसको डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करेंगे। जानना है गेन किया कौन, बी, तो जानना लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट जो सैक्रिफाइस कर रहा है। अमाउंट क्या होगा, कितना शेयर गेन किया, 1/10, तो 79,000 का 1/10, तो 79,000 का 1/10 कितना होगा, एक जीरो कर देंगे तो 7900, तो 7900 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए सैक्रिफाइस किया 1/10, तो 1/10 करने से उसका भी 7900 ही आ रहे, तो 2s कैपिटल अकाउंट 7900। नरेशन होगा जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आर एडजस्टेड। बस कंप्लीट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। तो फिर ये सब आइटम के लिए पहले जो जर्नल किए थे वो जर्नल कब करेंगे और अभी जो जर्नल कर रहे हैं ये जर्नल कब करेंगे। जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा जनरल रिजर्व, वर्कप्लेस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब पहले जो किए थे वो करेंगे। जब बोलेगा, जब कुछ भी नहीं बोला रहेगा तब पहले जो किए थे डिस्ट्रीब्यूट वाला जर्नल वो कर देंगे। और जब आपको बोल देगा कि एडजस्टेड एंट्री करो, तब हम लोग इस प्रकार से गेनिंग शेयर सैक्रिफाइस शेयर निकाल के तब ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व के ऊपर 4 केसेस के आधार पर शाम से। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन दे देगा और कुछ एडजस्टमेंट दे देगा उसके बारे में, तब क्या होगा 4 केस आएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर 5 केसेस आएगा। वो दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सो अभी जो डिस्कशन हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसके आधार पर जो किताब में है वो पढ़ो और उसके आधार पर शाम जो है वो शाम आपको करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।